کراچی میں بچے بیچنے کا دھندا عروج پر، 5 بچوں کی ماں ملزمہ مسرت کا مزید 2 نومولود اغوا کرنے کا انکشاف، والدین نے شناخت کر لیا، دیگر لاپتہ بچوں کے اہل خانہ کا بھی پولیس سے رابطہ۔ کراچی میں گندا دھندا کرنے والوں کی پیشی، بچے کے اغوا میں ملوث 7 مردوں کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، 4 خواتین کو جیل بھیج دیا گیا۔ افغان بستی سے گرفتار ملزمان کے ایک دوسرے پر الزامات۔ خواتین پر ظلم کی ایک اور کہانی، جیون ساتھی نے جان لے لی۔ اسلام آباد میں شوہر کے تشدد کی شکار خاتون دم توڑ گئی۔ رسومہ بی بی نے مرنے سے پہلے خاوند کے کالے کرتوت بتا دیے۔ گاڑی کا تنازع، گجرات میں پسند کی شادی کرنے والی ڈاکٹر کو شوہر نے قتل کر دیا، ملزم گرفتار، ورثاء نے مقدمہ درج کرا دیا۔ کراچی میں مردم شماری ٹیم پر حملے کا منصوبہ ناکام، خیبر پختونخوا پولیس کو مطلوب دہشت گرد گرفتار، ملزم کے مزید ساتھیوں کی بھی شہر میں موجودگی کا انکشاف۔ یوم پاکستان پریڈ میں حصہ لینے والوں کو اعزازات دینے کی تقریب، چین، سعودی عرب اور ترکی کے دستوں کی شرکت نے خوشیوں کو دوبالا کر دیا، صدر ممنون حسین کا خطاب۔ آرمی چیف کا دورہ محمد اور اورکزئی ایجنسی، افغان سرحد پر باڑ لگانے کا عمل شروع، جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں فضائی نگرانی کے ساتھ اضافی تکنیکی سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے، فاٹا کو قومی دھارے میں لانا ملکی مفاد میں ہے۔ بھارت نے تمام سرحدیں جلد سیل کرنے کا اعلان کر دیا، وزیر داخلہ راج ناتھ کہتے ہیں جہاں باڑ لگانا مشکل ہوا وہاں جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ ایف سی جوان فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سینہ سفر، وزیر داخلہ کہتے ہیں کچھ عناصر بلوچستان اور پاکستان میں امن نہیں چاہتے، سی پیک کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ میں گاڑی نہیں سمجھتا کہ مجھے لینی چاہیے کیونکہ میری بلدیات ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس نئی گاڑی کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس گاڑی کے عوض کوئی ایک ایسی گاڑی دے دیں جو میں اپنے علاقے سے کچرا اٹھا سکوں۔ کراچی کے بلدیاتی نمائندوں میں گاڑیوں کی تقسیم، متحدہ کے وائس چیئرمین کو غصہ آ گیا، کار لینے سے انکار، مراعات کے بجائے اختیارات، وسیم اختر کا نعرہ، سیاسی رشوت مسترد۔ جو ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے میری نظر میں یہ ایک برائب ہے، پولیٹیکل رشوت ہے یہ۔ مودی سے امداد کے لیے متحدہ بانی کا بیان مسترد، 80% پارٹی لندن سے الگ کر لی، فاروق ستار کا دعویٰ، میڈیا پر حملے کے ملزمان کی گرفتاری میں مدد دینے کی پیشکش۔ کراچی میں پی این ایس ڈاک یارڈ گودام کے اندر آتش زد کی، پاک بحریہ کے فائر ٹینڈر کی بروقت کارروائی، تنصیبات محفوظ۔ راولپنڈی کے چک بیلی روڈ پر کاٹن فیکٹری کی آگ بے قابو ہو گئی، 4 گودام لپیٹ میں، تپش سے عمارت گر گئی، ریسکیو اہلکاروں کا ویڈیو بنانے پر زور۔ I haven't made 10 billion, I've made 1 billion, and out of 1 billion I give you X amount and you let me go, and all those 9 billion I've stashed away, and I come out clean. نیب کے طریقہ کار پر اعتراض، چیئرمین سینٹ نے تمام اداروں کے لیے ایک ہی قانون کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں احتساب کے لیے کمیشن بنایا جانا چاہیے۔ فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کا پتہ صاف ہوتا دکھائی دینے لگا، کہتے ہیں امریکیوں کو ویزے دینے کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ عدالتوں کا احترام کیے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، پاناما کیس کا جو بھی فیصلہ آیا قبول کریں گے، شہباز شریف نے ملتان میں ویمن کرائسس سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ پاناما کیس کا فیصلہ آنے دیں پھر الیکشن کا بھی پتہ چل جائے گا، پرویز الہی کی نظر سپریم کورٹ پر، کہتے ہیں عوام باشعور ہو چکے، حکمرانوں کے کرتوت جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے منظور نظر افراد کی موجیں، زرگل خان کا سرکاری گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر میں سفر،
सूबाई वजीर शाह फरमान कहते हैं मुशीर खास वजीर आला के साथ कोहिस्तान गए थे। जमीन से मोहब्बत का इजहार, पाकिस्तान में अर्थ टावर, पार्लियामेंट हाउस समेत कई शहरों में अहम इमारतों की बत्तियां गुल। अवाम की क़ुव्वत खरीद में इजाफे के लिए इक़दामात, शरह सूद 5.75% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सक्खर पुलिस का कारनामा, सरकारी अफसर की गाड़ी को टक्कर मारने वाली गाय अंदर कर दी। पैसे दो आकर ले लो, हुक्काम का मालिक को पैगाम। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू। लाहौर में माधोलाल के उर्स की तकरीबात का आगाज। और शादी नहीं, इनाम के लिए दुल्हा दुल्हन की दौड़। थाईलैंड में 9 बयाख्ता जोड़ों के भागने का दिलचस्प मुकाबला। जी हाँ, तवानाई की करें बचत और जमीन से करें मोहब्बत का इजहार। माहौलियाती आलूदगी से आगाही के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस, पंजाब असेंबली समेत कई शहरों में अहम इमारतों की बत्तियां गुल कर दी गई। जगह जगह दिए रोशन किए जा रहे हैं। आज दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में भी आज तमाम सरकारी इमारतों की बत्तियां गुल कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस, पंजाब असेंबली समेत कई शहरों में अहम इमारतों की रोशनी बंद कर दी गई है और जगह जगह दिए रोशन किए जा रहे हैं। जमीन से मोहब्बत का इजहार, धरती से मोहब्बत का इजहार करें, अर्थ आवर मनाएं। अर्थ आवर की अहमियत से मुतालिक आपको बताएं कि अर्थ आवर मनाने की वजह यह है कि आप अपनी तवानाई को बचाएं, एनर्जी को बचाएं, मुल्क के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए ये सब कुछ करें और इससे बिजली भी कम खर्च होगी और यकीनन लोड शेडिंग का मसला भी हल हो जाएगा। के लिए हम मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। मुनिस अहमद कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे। आमिर सईद अब्बासी, पस मंजर में आपके अंधेरा है, लेकिन ये अंधेरा हमेशा रोशनियां रखने के लिए है। जी बिल्कुल आयशा, यहाँ पर मरकज़ी तकरीब जो हो रही है अर्थ आवर की, वो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रही है, जिसकी मेहमान खुसूसी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब हैं। कुछ देर पहले जैसे ही 8:30 बजे काउंट डाउन हुआ और उसके बाद तमाम जो यहाँ पर जो गैर ज़रूरी बत्तियाँ थी वो बुझा दी गई और इसके अलावा इसके करीब तमाम इमारतें, जो रेड जोन की तमाम इमारतें हैं, उनकी बत्तियाँ बुझा दी गई और यहाँ पर जो अर्थ आवर मनाने के लिए यहाँ पर लालटेन जो है, लाइटें जो है वो जला दी गई, मोमबत्तियाँ जला दी गई और अभी भी यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि हवा में बुलंद किए जाएं, रोशनियाँ बुलंद की जा सकें ताकि इस दिन को मनाया जाए। और इस तकरीब के जो स्पॉन्सर्स हैं वो WWF है और इसके अलावा फॉरेस्ट के अफसरान जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इन तमाम लोगों ने और सिविल सोसाइटी के अरकान हैं, इन तमाम ने यहाँ पर जमा होकर इस बात का अहद किया है कि हम तवानाई के बहरान पर जो मसला है उस पर काबू पाने के लिए जो गैर ज़रूरी लाइटें हैं वो तमाम बंद कर दें और इस रूटीन को न सिर्फ एक दिन के लिए रखा जाए बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने घरों में, अपने दफातर में, अपने इलाकों में जितनी भी गैर ज़रूरी लाइट्स हैं उनको बंद रखा जाए और तवानाई के जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है उसको कम किया जाए और ताकि इस मसले पर काबू पाया जा सके। दुनिया भर में जो तवानाई है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है और पाकिस्तान भी उसकी जद में है, उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर तवानाई का बहरान है। अभी भी यहाँ पर काविशों की ज़रूरत है। रुख करेंगे मुनिस अहमद का, जो कि रोशनियों के शहर में मौजूद हैं। और मुनिस, कुछ अरसे पहले तक तो जिस तरह लोड शेडिंग होती थी तो उसमें लोग तो यही कहते थे कि अर्थ आवर तो दिन में 6 मरतबा मनाया जाता है। अब कुछ राय बदली है अवाम की? देखिए, बिल्कुल जो आज कराची में तकरीब सजी है अर्थ आवर के हवाले से, यहाँ पे भी मेयर कराची वसीम अख्तर जो है मेहमान खुसूसी है और इनसे यहाँ पे एक शायकीन की जानिब से जो हाजरीन है उनकी जानिब से सवाल यही किया गया कि सर कराची वाले तो तकरीबन रोज़ ही अर्थ आवर मनाते हैं, तो ये एक ऐसी बात थी, ऐसी हकीकत थी जिस जो कि शायद कभी झुटलाई ना जा सके अभी तक तो। लेकिन मेयर कराची का बहरहाल ये कहना था कि जो अर्थ आवर आज मनाया जा रहा है इसका मैसेज यही है कि शहरियों में ये चीज़, ये पैगाम दिया जा सके जो गैर ज़रूरी
लाइट्स हैं उनको बुझाकर तवानाई का बहरान है वो कम किया जा सकता है। जो क्लाइमेट चेंज है उस पर काबू पाया जा सकता है और सबसे ज़्यादा अहम जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला है उसको शायद किसी तौर पे कम किया जा सके। यही जो आगाही है पूरे आज शहरियों में यहाँ पे दी गई है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर शरीक हैं। मेयर कराची अर्थ आवर से जुड़े तमाम पहलू आपने उजागर किए। मुनीस अहमद और आमिर सईद अब्बासी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अर्थ आवर के हवाले से दुनिया मीडिया ग्रुप भी तमाम गैर जरूरी लाइट्स बंद करके इसमें शरीक है। मजीद बता रही हैं दुनिया न्यूज की एंकर पर्सन मरियम अली। मैं इस वक्त दुनिया न्यूज की बिल्डिंग में मौजूद हूं और पूरी दुनिया में इस वक्त क्या होने जा रहा है और क्या मनाया जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। इस वक्त आप मेरे सराउंडिंग्स पे देख सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में मामूल की बात है लोड शेडिंग, तो यहाँ पर लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि हम इस वक्त मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं धरती से और कैंडल जलाकर गैर जरूरी लाइट्स बंद करके धरती से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। अर्थात आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसका आगाज 2007 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हुआ था और तमाम तर गैर जरूरी लाइट्स को बंद करके इसको शुरू किया गया था और साथ ही साथ 2008 में सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मुहिम चलाई गई थी जिससे तमाम तर लोग आगाह हो सकें और अर्थ आवर की अहमियत को समझें। आपको बताएं कि 7000 शहरों समेत 172 ममालिक में अर्थ आवर मनाया जा रहा है और आज पाकिस्तान में भी 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में तमाम अहम सरकारी इमारतों की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। एक तहकीक के मुताबिक बैंकॉक से मुतालिक आपको बताएं एक तहकीक हुई थी और उसमें 1 घंटा लाइट्स बंद रखी गई थी, जिसके बाद बैंकॉक में 73.34 मेगावाट्स बिजली सेव की गई थी और बहुत बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिजर्व किया गया था। तो इस बात से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 1 घंटा गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखकर इतनी बड़ी मिकदार में बिजली बचाई जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिजर्व किया जा सकता है, तो क्यों ना रोजमर्रा के इस्तेमाल में हम अपनी गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखें और अपने मुल्क के लिए, अपने माहौल के लिए, इर्द गिर्द की तब्दीलियों के लिए हम एक अच्छे शहरी तो 25 साल पहले बाबा क्रिकेट का फाइनल में चिराग गुल हुआ और उम्मीद के दिए रोशन हुए। एक बार फिर हम जिक्र करेंगे अर्थ आवर का, जो कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको मनाजिर दिखाए थे पार्लियामेंट हाउस के, जहां पर इस्लामाबाद में हमने देखा कि अर्थ आवर मनाया जा रहा है। अब मरियम औरंगजेब वफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा सोलर प्लांट लगा हुआ है। जब लाइट आ जाए तो आप लोग देखिएगा। और पाकिस्तान का पहला रिवर्स मीटरिंग जो मीटर है वो भी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान के अंदर। ऑनरेबल स्पीकर सरदार अयाज सादिक की गाइडेंस में ये उनका विजन था और ये उनका प्रोजेक्ट था जो इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आपने देखा कि पिछले 3.5 साल में 2013 में जिस वक्त हमने मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो 17 से 18 घंटे की लोड शेडिंग पाकिस्तान के हर शहर में थी और इस वक्त 4 से 5 घंटे जो पिछले महीने में 3 से 4 घंटे थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सोलर के, विंड के और एनर्जी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो पाकिस्तान की 40 से 50 साल तारीख में नहीं लगे, जो कि पिछले 1.5 साल में लगे। सुनहरा दौर कहीं खो गया है और अब खोए हुए बच्चों की बात कर लेते हैं। कराची की अदालत ने नौमौलूद बच्चे के अगवा में मुलव्विस मर्द मुलजिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया, जबकि 4 खवातीन को जेल भेज दिया गया। मुलजिम अदालत में आपस में ही उलझते रहे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली राना। कतर अस्पताल से बच्चे के अगवा का मामला। गुज़िश्ता रोज अफगान बस्ती से गिरफ्तार होने वाले 11 मुल्जिमों को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मर्द मुल्जिमों को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया, जबकि खवातीन मुल्जिमान से जेल में तफ्तीश करने की हदायत कर दी। आयु को ये हक दिया कि वो जेल में जाके किसी जनानी पुलिस अफसर के जरिए उनसे वहाँ पर तफ्तीश ये लोग कर सकते हैं। मुल्जिम पहले अदालत में आपस में उलझते रहे। अदालती कार्रवाई के बाद खवातीन मुल्जिमों ने मुसर्रत को कसूरवार ठहरा दिया। मैंने इनको दिया, मेरे को घर पे लाया। कौन लेके आया? मुसर्रत ने। कतर अस्पताल से ही एक और अगवा होने वाली बच्ची के वालिदैन भी अदालत पहुँचे। कहने लगे मुल्जिमा मुसर्रत ही 4 माह पहले बच्ची को अगवा करके ले गई थी। 4 औरत थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने एक पे हाथ रखा, उसका नाम मुसर्रत था।
उसी पे ही, और वो ही है मुजरिम। यहाँ पर आए लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे हमारी कोई हिक नहीं सुनी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों से 87,400 रुपए बरामद हुए, जबकि मुल्जिमा मुसर्रत ने मसीउल्लाह और नाजिया को 15,000 में बच्चा फरोख्त किया, जिसने ये बच्चा 1,15,000 में बेच दिया। बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी के बाद नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। एक तरफ गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान खुद को बेगुनाह करार दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब मगवी बच्चों के अहले खाना भी सामने आना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज कराची। 5 बच्चों की मां का दिल पत्थर बन गया। मुल्जिमा का नाम है मुसर्रत और इसने 2 अस्पतालों से मजीद बच्चे अगवा करने का इंकशाफ किया है। 2 बच्चों के वालिदैन ने शनाख्त कर लिया अपने बच्चों को और 10 से ज्यादा अफराद ने पुलिस से राबता किया है। इसी सिलसिले में अगवाकार गैंग की गिरफ्तारी के बाद अब नई कहानियां सामने आने लगी हैं। आप लोगों ने शनाख्त किया है, यही बच्ची को ले गई थी? जी जी बिल्कुल यही लेके गई थी। कराची के कतर अस्पताल से 9 मौलूद को अगवा करने वाला गिरोह कई वारदातों में मुलव्विस निकला। मरकजी मुल्जिमा मुसर्रत को 2 मुगवी बच्चों के वालिदैन ने पहचान लिया, जो 4 माह के दौरान अब्बासी शहीद और कतर अस्पताल से 2 बच्चे गायब कर चुकी थी। अभी तक 3 फैमिलीज ऐसी आई हैं जिनके बच्चे अगवा हुए हैं। एक फैमिली नाज़िमाबाद से ताल्लुक़ रखती है, जिनका बच्चा कुछ अर्से पहले अगवा हुआ था। उन्होंने भी मुल्जिमा मुसर्रत को शनाख्त किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमा मुसर्रत का तरीका वारदात मुख्तलिफ था। पहले वालिदैन या रिश्तेदारों को शीशे में उतारती और फिर मौका देखकर बच्चा उठा लेती। 4 माह कबल कतर अस्पताल से अगवा की गई। 4 माह की बच्ची को चुप कराने के बहाने नानी से लिया और गायब हो गई। हो रही थी बच्ची बहुत, उसको फुसलाने यानी कि बहलाने के लिए ली और वो उनको पता नहीं, वो बैठी थोड़ी देर बस वो अचानक से ही गायब हो गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक बैनुस सूबाई गिरोह से है। मुल्जिमान मुगवी बच्चों को बे औलाद अफराद को लाखों रुपए में फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन खलील आदिल के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज कराची। रावलपिंडी से अहम खबर दें, जहां चक बेली रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आग लगी और 10 घंटे बाद भी इसे बुझाया नहीं जा सका। 4 गोदाम इसकी लपेट में हैं और तपिश से इमारत भी गिर गई है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अदनान, क्या वजह है कि 10 घंटे गुजर गए, आग अब तक बेकाबू है? चकबेली रोड पे जिस गोदाम में आग लगी थी सुबह 10 बजे, इस पे काबू पाने की तमाम तर कोशिशें जो है नाकाम हुई हैं। रेस्क्यू के पहले एक गाड़ी लगी रही, फिर दूसरी गाड़ी उन्होंने मंगवाई और उसके बाद जब दुनिया न्यूज पे खबरें चली तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मजीद फायर टेंडर मंगवाए, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त रवात पुलिस जो है वो पहुंची है यहाँ पे। तमाम तर वाक़े की तहकीकात भी की जा रही है कि आग लगने की असल वजूहात क्या हैं, हकायक क्या हैं, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि कोई तखरीबकारी का अंसर भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन साथ साथ इस वक्त जो पोजीशन है अभी तक यहाँ पे गोदाम में जो आग है वो अगले गोदाम को ट्रांसफर होती जा रही है। जो ही आवाज तेज चलती है तो आग का जो लेवल होता है शिद्दत का वो भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त आग पे जो रवात चुके, ये इससे चकबेली रोड पे रावलपिंडी से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो यहाँ पे रेस्क्यू की दीगर टीमों को भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक जो आतिशज़दगी हो रही है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। 6 लोग इसमें इस वाक़े में मुतासर हुए हैं, जिनको यहाँ पे जो इंतजामिया फैक्ट्री की उसी ने तिब्बी इमदाद दी है। मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है क्योंकि अंदर जो मुलाजमीन थे उन्होंने फोन कॉल में ये बताया कि फायर फाइटिंग सिस्टम अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आग जो है उस पर काबू अभी तक नहीं पाया। आधा दिन गुजर गया लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहुत शुक्रिया अदनान मुख्तार आपका। जमीन से मोहब्बत का इजहार, पाकिस्तान में अर्थ टावर, पार्लियामेंट हाउस समेत कई शहरों में अहम इमारतों की 1 घंटे तक बत्तियां गुल। दुनिया न्यूज की खबर पर लाहौर के दानियाल को मसीहा मिल गया। पंजाब हुकूमत ने दिल के सुराख की बीमारी में मुब्तला बच्चे के मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया। और उमरकोट में थर फेस्टिवल, बुज़रा के लिए सकाफती रंगों से सजाई गई गाड़ी धक्का स्टार्ट निकली।